Hello guys, as I've told you that this is a trial version, so when 40 minutes were over, the meeting was ended. Now again I have started it for another 40 minutes. So let me share my screen with you all. Okay, and let me do some settings. Wait guys, I'm stopping sharing. Okay, share screen. This happens with the trial version because we do not have the purchased version, so that's why we are facing this problem. Let me open the chat box as well. If you send any messages that I can read them. Okay, beta. So now let's start. So I was talking about the prior understanding of the Oedipus Rex. So shortly after the birth of Oedipus Rex, his father King Louis, the name of father of Oedipus was King Louis. So King Louis of the Thebes. As I told you that the Thebes is the name of place where his father was the king, and later Oedipus himself became king of Thebes. So here the King Louis learned from Aurel. Now I'm highlighting those important points that you may it become easier for you to understand them very properly. So shortly after birth of the Oedipus, his father King Louis of Thebes learned from an oracle. What is oracle? It refers to the place where the prophecies were given, because Apollo was the greatest god or the biggest god of Greeks. जो ग्रीक्स थे उनके जो सबसे बड़ा जो खुदा था वो था अपोलो. He used to give prophecies about different things. Whatever prophecy he used to say, they used to become true. वो जो भी कहता था कि ये ऐसा होगा, prophecy means prediction about future. So ये है, prophecy means prediction about future. वो अगर किसी के बारे में कोई भी prediction करता था तो that used to become true. तो वो ट्रू हो जाता था. सो और ऑरेकल एक जगह का नाम है जहाँ पर अपोलो रहता था और वहां से ये प्रोफेसीज देते थे. तो ऑरेकल अपोलो की जगह से किंग लुइस को पता चला कि इसका जो बेटा होगा is doomed to perish by the hands of his own son. किंग लुइस अपने ही बेटे के हाथों मरेगा. एंड विल मैरी टू क्वीन, और फिर आपकी जो क्वीन है विच मीन्स द मदर ऑफ योर सन, तो उसके साथ वो शादी करेगा. सो दिस इज द प्रोफेसी विच वाज डन बाय अपोलो. अपोलो ने ये प्रोफेसी दी किंग लुइस को कि आपका बेटा होगा और आपका जो बेटा होगा वो आपको आप उसी के हाथों तबाह होंगे, और देन ही विल मैरी विद योर वाइफ, which means he will marry with his mother, but he would do all these things unintentionally. So therefore he ordered his wife Jocasta. Jocasta was the queen. He ordered Jocasta, the mother of Oedipus, to kill the infant. उसने ये कहा कि आप बच्चे को मार दो, because the king was afraid that my own son would kill me and then he would marry to his own mother. So that's why he ordered his wife Jocasta to kill the infant, to kill him. So queen and her servant could not kill the infant. So this kind of scenario you will never find in the original text, neither you are going to find in any summary, because this text is based on understanding of the whole play. जो पूरा प्ले है उसकी बेस उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो आपके सामने में समराइज्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये एक बड़ी मेहनत के बाद आई हैं. सो क्वीन एंड हर सर्वेंट कुड नॉट किल द इन्फेंट. उन्होंने बच्चे को नहीं मारा. ही वॉज अबंडन्ड. वो वहां पर उन्होंने उसको छोड़ दिया. देयर ही वॉज फाउंड एंड ब्रॉट अप बाय अ शेफर्ड. अब ये वहां पर एक शेफर्ड था. इस शेफर्ड ने उस बच्चे को देखा. इन सम से दैट ये जो शेफर्ड है इसको जो कास्टा और उसके जो सर्वेंट था उन्होंने खुद इस शेफर्ड के हवाले कर दिया कि जाओ और इसको जाके आप यहाँ से कहीं बहुत ज्यादा दूर ले जाओ और आप जाके इसको पालो. सो देन before being taken and raised in the court of the चाइल्डलेस किंग पोलिबस ऑफ कोरिनेथ. अब ये चीज यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं गाइज, आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा. आई एम श्योर कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ये बच्चा शेफर्ड ले गया. शेफर्ड ने जाके एक
किंग था जिसका नाम था, लेट मी हाईलाइट इट, किंग का नाम क्या था? पॉलीबस। पॉलीबस था, कॉरिनथ का वो किंग था, चाइल्डलेस था, इस किंग को बच्चा नहीं था। तो शेफर्ड ने जाकर ये बच्चा इस किंग को दे दिया। एंड इफ ही वर हिज ओन सन, उन्होंने इस बच्चे को, अच्छा शेफर्ड ने कहा कि ये जैसे कि मेरा अपना बेटा है और मैं आपको देना चाहता हूँ, और क्योंकि ये जो शेफर्ड था, इस जो ये जो किंग है, इस पॉलीबस का मैसेंजर भी था, तो इसीलिए इस मैसेंजर ने, इस शेफर्ड ने ये आर्डिपस को इस किंग के हवाले कर दिया। देन द आर्डिपस वाज grown up over there, and when he grown up, then he heard some rumors what, that you are not biological son of the king, okay, son of the king। उसने कुछ rumors यहाँ से सुने कि ये जो आर्डिपस किंग है वो जो पॉलीबस का बायोलॉजिकल सन नहीं है। So he consulted, he went, Oedipus himself went to Oracle, he went to Oracle, फिर अपोलो की तरफ ये गया, which foretold that he would marry his own mother and kill his father। पहले ये अपोलो ने प्रोफेसी की थी, लुइस को कहा था, लुइस ने अपनी वाइफ को कहा कि इस बच्चे को मार दो, बट शी डिड नॉट किल, नीदर शी टोल्ड एनीथिंग टू हिज हस्बैंड। सो सीक्रेटली ये काम हुआ, वो बच्चा शेफर्ड के पास गया, शेफर्ड ने किंग पॉलीबस को दिया। एंड देन वहाँ से क्या हुआ है कि वो जब बच्चा ये बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा, किसी एक बूढ़े आदमी ने कहा आर्डिपस को कि यू आर नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ पॉलीबस, द किंग पॉलीबस। देन आर्डिपस रेक्स वेंट टू द ऑरेकल, विच मीन्स ही वेंट टू द अपोलो, अपोलो के पास गया अपने फ्यूचर के बारे में मालूम करने के लिए। वेयर अपोलो टोल्ड हिम दैट यू आर गोइंग टू किल योर मदर, सॉरी यू आर गोइंग टू किल योर फादर एंड यू विल मैरी विद योर मदर। जब ये आर्डिपस ने सुना, he was out of his senses, he was very desperate, and desperately to avoid this foretold fate, in order to avoid this fate, he just left the kingdom। Which kingdom? The kingdom of Polybus। ही जो इसका ये जो फादर था, इसने जिसको एडॉप्ट किया था, क्योंकि आर्डिपस को ये कंफर्म नहीं था कि मेरे फादर यही है बायोलॉजिकल या नहीं, बस इसको थोड़ा किसी बंदे ने बताया था। सो ही लेफ्ट, ही सेड दैट इफ आई वुड लिव हियर, मे बी fate will force me to kill Polybus, my father, and then marry to my mother। Then he left that area, he left from there and went to another side। Unfortunately, वहाँ से जब उसने छोड़ा अपने जो उसके एडॉप्टेड जो फादर, जहाँ पर ये एडॉप्शन जिन्होंने इसका किया था, वहाँ से पोलिबस से छोड़ के इसके जो बायोलॉजिकल फादर था लुइस, उसकी टेरिटरीज में एक्चुअली आ गया, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था कि मेरा जो बायोलॉजिकल फादर वो लुइस है, और जो कास्टा मेरी मदर है, ही डिडंट नो एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई ही केम ऑन द एरिया ऑफ द बेस, वेयर ही मेट दी लॉइस। यहाँ लॉइस से इसकी मुलाकात हुई, बिकॉज द लॉइस वाज आल्सो गोइंग टू द अपोलो। अपने सर्वेंट्स के साथ लॉइस वाज गोइंग टू अपोलो इन ऑर्डर टू हैव अ मीटिंग विद हिम, इन ऑर्डर फॉर हैविंग सम फ्यूचर प्रेडिक्शंस। सो they Lois encountered his son, but he didn't know where, these both didn't know that whether they are son and father. So they had some arguments about the road, because Oedipus was very brave and very arrogant and very prideful. He asked this old man to give him a side, whereas Louis was a king. He had his servants along with him, so he asked Oedipus to give him side. In this way, the arguments took place, and after the argument, Oedipus took out his sword and just killed him. Just killed Louis, which means he has killed his father, and the first part of the prophecy was fulfilled unknowingly। इनको पता भी नहीं चला, और फर्स्ट जो पार्ट था प्रोफेसी का, प्रोडिक्शन का, कि आप अपने फादर को मारोगे, तो ही हैज किल्ड हिज फादर, उसने अपने अब्बू को मार दिया। देन ही वेंट फर्दर टू दिबेस, वो दिबेस सिटी की तरफ गया जहाँ का लुइस किंग था। लेटर ही सॉल्व द रिडल ऑफ दिस स्फिनिक्स। स्फिनिक्स, अच्छा ये स्फिनिक्स, इसको क्या कहते हैं, ये एक ऐसा फिक्शनल एनिमल है विच हैज द बॉडी ऑफ लॉयन एंड द फेस ऑफ मैन,
or falcon, the sheep or any animal. The means face of man, falcon, sheep, or some others, and his body is purely like a lion. So it was the there was the curse. उस टाइम पे दिबेस सिटी के ऊपर एक कर्स था. उस कर्स ये सिनेफिक्स ने दिया था. अब इसमें कुछ रिडल्स दिए हुए थे एंड ही आस्क्ड दैट whoever will solve these riddles, then the curse would be lifted from the city and I will go away and then city would be yours. So in this way Oedipus came in the base where he encountered this phoenix and he solved the riddles of given by this monster. Then the monster handed over the whole city in the hands of Oedipus, and in the reward of this whole city was very happy. Even the kingdom was happy for the Oedipus, and they were giving him a high rank and giving him a high value that he has helped the city to lift the curse. So in this way, the hand of the Jocasta was given to the Oedipus in order to make him king. उसको सारी किंगडम ने कहा कि ऑडिपस को किंग बनाया जाए दिबेस का, और वो तभी मुमकिन था जब वो क्वीन के साथ शादी करेगा. ये उनका रूल था. तो इसी तरह से क्वीन का हैंड दिया गया जोकास्टा, जो कि इसकी बायोलॉजिकल मदर थी, ऑडिपस को. ऑडिपस मैरिड टू हिज मदर जोकास्टा, देन ही बिकेम किंग. तो उसके बाद ही ये वहाँ का किंग हो गया. बट till this they didn't know anything that whether they are he has killed his father and the prophecy is fulfilled. इनको कुछ पता ही नहीं था. आई होप कि ये जो प्रायर अंडरस्टैंडिंग है ऑडिपस रेक्स की, आप लोगों को समझ में आई होगी. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग देन प्लीज लेट मी नो. कि अगर यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज मुझसे पूछ लें. आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं. ओके जवेरिया जी, जवेरिया सर किंग लुइस की सर डेथ किस तरह हुई, ऑडिपस ने उसको कैसे मारा, सर ये पार्ट समझ नहीं ये आया. तुम्हें समझ में नहीं आया. ओके ओके, लेट मी गो बैक. अच्छा, इसी स्लाइड के ऊपर ठीक है. जब वहाँ से अपोलो से मुलाकात हुई एडिपस की, अपोलो ने कहा कि आप अपने फादर को मार दोगे और अपनी मदर के साथ आप मैरिज करेंगे. तो एट दैट टाइम जो एडिपस था वो तो अपने जिन लोगों ने जिस किंग ने उसको अडॉप्ट किया था पॉलीबस, वो तो उसी के साथ रहता था. एडिपस को तो पता था कि पॉलीबस मेरा फादर है और उसकी जो वाइफ है वो उसकी मदर है. तो वही उसके मदर और फादर थे. इसको तो यही पता था. इसको तो पता ही नहीं था कि किंग लुइस इसका एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर है. ही वाज टोटली अनअवेयर. इन ऑर्डर टू अवॉइड द फेट, उस फेट को, उस प्रोफेसी को अवॉइड करने के लिए ऑडिपस ने क्या किया कि पॉलीबस, उसके जो फादर और मदर थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, उनको छोड़ा और कहा कि मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ ताकि बाय मिस्टेकली अननोइंगली मैं अपने फादर पॉलीबस और अपनी मदर को मार ना दूँ, तो अपनी मदर से मैं शादी ना कर लूँ. तो इसी वजह से उसने वहाँ से, मतलब सबको बिन बताए वहाँ से चला गया. वो जब वहाँ से चला गया तो अनइंटेंशनली, अननोइंगली वो उसका जो अपना जो फादर था लुइस, उसकी टेरिटरी में आ गया. आडिपस किसकी टेरिटरी में आ गया? उसके अपने बायोलॉजिकल फादर की टेरिटरी में आ गया, दी बेस की टेरिटरी में आ गया. तो वहां पर जब ये उसकी टेरिटरी में आ गया तो लुइस अपने सर्वेंट्स के साथ अपोलो से मीटिंग करने जा रहा था फॉर द प्रेडिक्शन, फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस. उसके लिए मीटिंग के लिए जा रहा था. तो अब यहाँ पर दोनों का रास्ते पे इनकाउंटर हो गया ऑन द रोड टू द बेस. जो दिबेस का रोड था वहां पर ही मेट लुइस. कौन? ये पहली लाइन में देखें, ही मेट लुइस. ऑडिपस की मुलाकात लुइस से हो गई और लुइस जो किंग था उसके साथ तो बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन ऑडिपस अकेला था. वो ही वाज अ वॉरियर, ही वाज वेरी ब्रेव. सो ऑडिपस ने सामने को कहा, किंग को कहा कि भाई आप मुझे रास्ता दे दें, मुझे यहाँ से गुजरना है. लेकिन किंग सेड दैट आई वोंट लेट यू गो फ्रॉम हियर, सो यू गिव अस अ साइड. आप हमें साइड दे दो. नीदर वी आर गोइंग टू गिव यू साइड. तो इसीलिए इनका वहां पर थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ. जब आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसके बाद आडिपस ने जो किंग के साथ उनके जो सर्वेंट्स थे उन सब सर्वेंट्स को मारा. उनको मारकर देन ही किल्ड द किंग हिमसेल्फ एज वेल. उस किंग को भी मार दिया इसने, क्योंकि ही डिडंट नो दैट ही इज हिज फादर. उसको पता ही नहीं था.
इवन वहाँ तो उस टेरिटरी में तो आर्टिफस फर्स्ट टाइम आया था, तो उसको लगा कि ये कोई होगा, लॉर्ड वॉर्ड होगा तो अपने लिए होगा, तो ही किल्ड हिम, उसको मार दिया। देन ही वेंट बैक टू द सिटी, वेयर सिटी में वो जो कर्स थी वो तो आपको आई होप के पॉइंट समझ में आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट जवेरिया, कि हाउ ही हैज किल्ड हिज फादर? ओके, ओके, आपका मैसेज मैंने देख लिया, थैंक यू सर। सो इन दिस वे Oedipus become king, and he killed his father, and then he married his mother. Now let's move forward to the summary of Oedipus Rex. Let me open it. Summary, yeah, brief summary of the Oedipus Rex. Now, when we discuss about the brief summary of Oedipus Rex, as the play opens, this is the first scenario of the play. The whatever the prior understanding I have told you, that is totally different from the original play. The first scene of the play is written here. This is the first scene of the play. Okay, let me highlight it. As the play opens, a priest and the chorus of the bear elders are calling on King Oedipus to aid them with the plague which has been sent by Apollo to ravage the city. Because let me explain to you point by point, that it might be easier for you to understand the summary. Oedipus was in his castle. He was waiting, or he was resting. Then he heard the sounds of the people, the priest, the जो वहाँ का उनका जो priest होता था, उसने उनको बुलाया कि आप आ जाएं. Artipus went to face the audience. A lot huge gathering of audience was gathered over there. Huge audience was there. They were all asking for help from Artipus, क्योंकि एक दोबारा एक मरतबा फिर इनके शहर के ऊपर एक कर्स आया था. ऑल द एनिमल्स वर डाइंग, नो क्रॉप्स वर, वहाँ पर कोई जो क्रॉप्स होती थी वो नहीं हो रही थी. एनिमल्स वर डाइंग, देयर वाज नो फूड फॉर द पीपल, दे वर सफरिंग अ लॉट. सो दे वर asking for help from Oedipus king, that please, last time you helped to lift the curse, so will help us once again in order to uh, uh, leave the curse from upon us. So in this way, Oedipus addressed the crowd. उस crowd को Oedipus ने address किया, and he told that I have a lady sent Charon. Charon is his sister, his brother-in-law, means the brother of Jocasta. Charon, brother-in-law, he sent Charon to the Apollo for the consultation that what should be done and how the curse would be lifted from the city. So Charon went there. कैरोन वहाँ पर गया अपोलो से मिलने के लिए, और जब वो वहाँ से जब वो वापसी आया, तो कैरोन ने एक न्यूज़ लाया कि ये जो सिटी है इसके ऊपर से जो कर्स है वो तभी ख़त्म हो सकती है जो हमारा प्रीवियस जो किंग था, किंग लुइस, उसका जो मर्डरर है, उसका जिसने बंदे ने मर्डर किया है वो सिटी वॉल के अंदर रहता है. वो until and unless that person would not be brought to justice, the curse will never be left. कर्स खत्म नहीं होगी जब तक उस बंदे को हम जस्टिस तक नहीं लाते हैं. तो at that point, Oedipus promised to all the audience, to all the people who were gathered around, he promised to them that he will try his best to find out that murderer of the King Louis. He was the king, but still he didn't know that he killed the king of the place. He was totally unaware from the situation, because he had killed the Louis far away from the city. So that's in the jungle. So nobody knew that how he killed the Louis. And the people were believing that the King Louis was murdered by the robbers. वो लोग ये सोच रहे थे कि रॉबर्स आए, किंग के पास सोना वोना होता था, गोल्ड्स होते थे, तो उसकी वजह से उसको मारा और वो सोना और वो लूट कर चले गए. गाइस 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, अजानें हो रही हैं, तो अजान के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं. ओके.
Welcome, welcome back. I am also back. Azan is over. Can you hear me, guys? Dear students, can you hear me? Let me know in the chat box. Can you hear me? Okay, Mushtaq. Perfect. Okay, Abdullah. सो हम बात कर रहे थे कि ये किस तरह से हुआ, ये जो आर्टिफैक्ट्स है, इसके कौन कौन से जो मेजर इवेंट्स हैं मैं थोड़ा ब्रीफली ये बताऊंगा, और आपको समरी भी मैं भेज दूंगा, देन आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट्स में, ये डिटेल में मैंने निकाल के रखी है आप लोगों के लिए। ओके गाइस, सो अब ये मैं कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहा था यहाँ पर। इसने अपने भाई को भेजा, ब्रदर इन लॉ को कहा कि आप जाओ पुलिस से जाके पूछ के आए कि ये जो कर्स है ये किस तरह से हम लिफ्ट कर सकते हैं दोबारा। तो अपोलो ने उनको कहा कि ये जो आपका किंग लुइस था उसका जो मर्डरर है वो सिटी वॉल्स के अंदर रह रहा है, तो जब तक आप उसको जस्टिस उसको जस्टिस तक नहीं लाओगे तो ये कर्ज खत्म नहीं होगी। तो देन आर्टिपक्स हर्ड दैट देयर वाज अ ब्लाइंड प्रॉफिट नेम्ड, उसका जो ब्लाइंड प्रॉफिट था ये अजीब और नस्म का नेम है इसका। तो ही this prophet was blind and he was saying that he know the answers of those questions which are asked by Oedipus, King Oedipus। उसने कहा कि जो सवाल Oedipus पूछा उनके आंसर्स मैं मेरे पास ही मैं ही दे सकता हूँ। So Oedipus summoned the person, the prophet, and this prophet was the same who gave prophecy to Jocasta in the land of Apollo at the जहाँ पर अपोलो बैठता है। तो ये जो ब्लाइंड प्रॉफिट था ये भी अपोलो के वहाँ का, यूँ आप समझें कि मेंबर था, उसकी जो पूरी कमेटी थी उसमें 4-5 प्रॉफिट्स होते थे, तो ये ही वाज वन ऑफ देम। तो दे टुगेदर यूज्ड टू गिव प्रोफेसीज। तो इस तरह से अब इस बंदे ने कहा कि आपके सवालों में मेरे पास जवाब है। तो आर्टिपस रेक्स ने किंग आर्टिपस ने इसको बुलाया अपने पास और इससे पूछा कि जी बताओ कि क्या है आंसर्स आपके पास। तो इसने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बताया नहीं जाता, बिकॉज दे हर्ट व्हेन द ट्रूथ ब्रिंग्स नथिंग बट पेन। ये देखें, इसीलिए वो नहीं बता रहा था कि वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। व्हेन द ट्रूथ ब्रिंग्स नथिंग बट पेन, he advised Oedipus to abandon his, मतलब वो जो इसकी जो अपनी सवाल थे, उसकी जो अपनी सोच थी उसको आप अपंडन कर दें, उसको छोड़ दें, आप इस पूरे सिनेरियो को छोड़ दें। देन आर्टिकस somehow realized that this is the prophet who might kill the Louis, and the prophet was accused for the killing of Louis. Then he start telling the truth to Oedipus that actually you are the one who killed the King Louis. Then Oedipus was very surprised and he just asked that prophet to leave the court because those prophets were very respected and nobody was allowed to harm them. So he asked him to leave the court और यहाँ से आप चले जाओ। उसको इस तरह से उसने वहाँ से कहा कि अब यहाँ से चले जाओ। Then Oedipus demands the Charon. Then ये जो कैरोन है, कैरोन जोकास्टा का भाई, हिज ब्रदर इन लॉ, ऑडिपस को ये लगा कि प्रॉफिट ने और कैरोन ने मिलकर एक कोई सिनेरियो बनाया है मेरे लिए, ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर किंगडम के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, मेरे क्राउन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। बिकॉज जब कैरोन अपोलो से आया था इसने कहा था कि जो किंग लुइस का जो किलर है वो जब तक जस्टिस उसके साथ किंग के खून का इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक कर्ज लिफ्ट नहीं होगी। तो उसी सेम कॉन्टेस्ट में ये जो प्रॉफिट था ब्लाइंड, इसने कहा कि उसका किंग का कत्ल आपने किया है। तो अल्टीमेटली विच मीन्स कि आप चाहते हैं कि किंग ऑडिपस को हम यहाँ से मार दें, हटा दें, उसको सजा दें और उसकी किंगडम के ऊपर कब्जा कर दें। तो दिस इज व्हाट द सिनेरियो व्हिच टुक प्लेस ओवर देयर। तो ही वांट टू एक्जीक्यूट हिज ब्रदर इन लॉ, बट आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ हिज वाइफ जोकास्टा he just left him, उसने उसको छोड़ दिया। देन आर्टिपस वाइफ जोकास्टा टेल्स हिम दैट ही शुड नॉट नोटिस ऑफ द प्रॉफिट्स। इसने उसको कहा कि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं आप इनकी बातों का मतलब आप इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लें। एंड फिर जोकास्टा ने उसको कहा कि आज से बहुत टाइम पहले इसी सेम प्रॉफिट ने एक प्रोफेसी बताई थी ऑरिकल के अंदर कि जब हमारा बच्चा होगा तो वो मारेगा मेरे अपने हस्बैंड को, मारेगा लुइस को। लेकिन लुइस तो अपनी उसको जिसने मारा है वो तो रॉबर्ट्स थे, उसको रॉबर्ट्स ने मारा है।
और इसने ये भी हमें कहा था कि लुई अपने किंग फादर को मारकर फिर अपनी मदर से आप वो शादी करेगा. When Oedipus heard this news, then he was shocked because the same prophecy was given to Oedipus by the Apollo. जब ये अपोलो के पास ऑडिपस कूद गया था तो उसने भी उसको यही कहा था कि यू विल किल योर फादर एंड यू विल marry with your mother, and the same thing was is being told by his wife and his mother, that Jocasta, that the prophecy was given to me that my son will kill my husband and will marry me, so my husband is dead in by the robbers. So in this way this scenario took place over there. तो वहां पर क्या हुआ कि आर्टिपस रेक्स के दिल में बड़े शकूक पैदा हो गए कि असल में हुआ क्या है. देन ही स्टार्ट डिगिंग आउट द सिचुएशन. वो वहीं पे थे तो आर्टिपस रेक्स के पास एक मैसेंजर आया. और दूसरी बात, जब इसकी वाइफ ने उसको बताया कि जो किंग का जो कत्ल हुआ था वो क्रॉस रोड पे हुआ था. एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू रिमेंबर, देन व्हेन ऑडिपस एंड किंग लुइस मेट ऑन द क्रॉस रोड ऑफ द बेस, वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी और ऑडिपस ने वहीं पे उसको मारा. तो इसने बताया कि हमारे किंग का मर्डर वहां पे हुआ है जगह से. ऑडिपस को और ज्यादा शकूक हो गए कि might be I am the one who had killed the King Louis. So this is and Oedipus became so much furious in order to find out the truth. At that time, a messenger from his adopted father Polybus, जिसने इसको अडॉप्ट किया था, वहां से एक मैसेंजर आता है. देखें ये जगह का नाम है फ्रॉम कॉरिनथ. आई टोल्ड यू दैट पॉलीबस वाज द किंग ऑफ कॉरिनथ. तो वहां से मैसेंजर आया. मैसेंजर ने आके बताया कि आपका जो फादर था कॉरिनथ, उसकी नेचुरल काजेस की वजह से उसकी डेथ हो गई है. तो यहाँ पे आर्टिपस बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि जो प्रोफेसी मुझे बताई गई थी कि मैं अपने बाप को मारूंगा, तो मैंने तो अपने बाप को नहीं मारा, मेरा बाप तो खुद मर गया. तो ये मैसेंजर वही था एक्चुअली. वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो मैसेंजर था ये एक शेफर्ड था जो कि किंग पोलिबस का मैसेंजर भी था. तो इसी शेफर्ड ने आर्डिपस को किंग के हवाले किया था. तो हियर when the Oedipus was very much excited and told each and every person over there in the presence of this messenger that I have not killed my father. My father is dead due to the natural death. And now I want to confirm just one thing, that whether I did anything wrong to my mother or not. I want to avoid the second part of the prophecy as well. तो यहाँ पर जो मैसेंजर था उसने कहा कि आपके तो वो मदर और फादर आपके तो वो बायोलॉजिकल है ही नहीं. आपके वो बायोलॉजिकल नहीं है पेरेंट्स, आपको उन्होंने अडॉप्ट किया था. देन दैट मैसेंजर टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग टू द आर्टिफिस रेक्स दैट हाउ ही केम फ्रॉम. देन ही टोल्ड दैट एक्चुअली वो किंग लुइस का बेटा था जो मैंने उनको दिया था. तो देन थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस मैसेंजर, आर्टिफिस रेक्स केम टू नो अबाउट the truth that actually who is his father. तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर थोड़ा क्योंकि डिटेल में था, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है. शेफर्ड, ये जो शेफर्ड था, आर्टिपस ने शेफर्ड को थ्रेटन किया क्योंकि वो पहले उसको बता नहीं रहा था. फिर उसको टॉर्चर की धमकियां दी, एग्जीक्यूशन की धमकियां दी. उसके बाद ही उसने बताया कि आपका बायोलॉजिकल फादर कौन है और मैंने ही आपको जो कास्टा से लेकर आपको पोलिबस तक पहुंचाया था. एंड देन वहाँ आपके जो उन्होंने आपको अडॉप्ट किया था, आपने उनको छोड़कर बाय मिस्टेकली यहाँ पर आ गए. एंड जो प्रोफेसी इसने बताई ब्लाइंड प्रॉफिट ने कि आपने लुइस को मारा है, वो भी वहाँ पर ट्रू साबित हो गई. एंड after that, when this whole scenario was cleared by the shepherd, when the tragic hero came from ignorance to the knowledge, जब ये सारी चीजें उसको पता चल गई, from that point the tragedy started. Before this, the character was living very happy life, but when he came to know these things, when he came to the knowledge, when the things became clear to the tragic hero, उसके साथ ट्रेजिडी स्टार्ट हो गई. तो अब ये जो ट्रेजिडी इसके साथ स्टार्ट हुई है तो वो नॉलेज की वजह से हुई है. ठीक है. तो अपने अपने आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो सर्वेंट था, जो कास्टा अपनी जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो जो कास्टा दौड़कर अपने कमरे में गई. शी वेंट इन हर रूम एंड one of the servant from Jocasta's room came to the Oedipus and she told
uh, uh, Oedipus that your wife ran away in the room and she has hanged herself. जोकास्टा ने खुद को फांसी लगा दी. She killed herself, she hanged herself, and Oedipus वहाँ पर दौड़ता हुआ गया in the room where his wife, or we can say that his mother, has hanged herself. Then he went there and he was crying and shouting over there. He was shouting at his servants that give him a sword that he can end his life over there, and nobody was giving him sword because they were fearing that if we would give sword to the Oedipus, then he would kill himself. So इसी वजह से कोई भी उसको sword नहीं दे रहा था. Then he went to the hanged body of Jocasta. He took out 2 pins from her dress. 2 pins उसने वहाँ उनकी ड्रेस से निकाली. Then with the help of 2 pins, 1 pin he has pinched in his one eye and the second in his second eye. दोनों पिंस अपनी आईज में उसने पिंच कर दी. In this way Oedipus became blind. वो ब्लाइंड हो गया. Now Oedipus begged to be exiled. उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे जाके किसी जंगल में छोड़ के आओ, because I deserve to suffer. I don't want to die. I want to suffer because the crime, the sin which I have did, this is more. This cannot be washed away with my death, but it could be washed away with my suffering. So with the help of those suffering, I can I can reduce the pain which I have in my heart and my mind. So due to this reason, he was asking again and again to the Charon, his brother-in-law, to take him to the jungle, and I will live rest of my life over there. And he asked his brother-in-law Charon, here you can see that, to look after his daughters. He had 2 daughters, and he asked his Charon to look after them and look after the city and the crown as well. In this way, Oedipus start suffering, and और इसी तरह से उसका जो एंड है इसी तरह से सफरिंग में हुआ है. आई होप कि मैंने इसको ब्रीफ करके आपको समझाया और किसी हद तक आपको समझ में भी आया होगा. तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको यहाँ से समरी में कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि मिस हुआ हो, जो आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो. तो स्टिल वी हैव गॉट कपल ऑफ मिनट्स, तो आप मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. एनीवन? आप रेज हैंड करें या आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं. इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स. अगर सब कुछ क्लियर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें. अगर कुछ पूछना है तो भी रेज योर हैंड. आई विल अनम्यूट यू. ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट. किसको बोलें सर? हु हैंग्ड हरसेल्फ? Jocasta. Abdullah, Jocasta hanged herself because she came to know that no, mother. Jocasta was the mother of Oedipus, and she was wife of Oedipus. I think you missed some points, so that's why you are getting confused. Jocasta जो थी वो जब उसको पता लगा, सर्वेंट ने बताया, उसका जो मैसेंजर था वो वहाँ पर आया हुआ था. वो मैसेंजर वही शेफर्ड था जिसको बचपन में जोकास्टा ने अपना बेटा दिया था. तो वो शेफर्ड ने कहा कि मैं वही शेफर्ड हूँ जिसको जोकास्टा ने एक छोटा बच्चा दिया था. वो छोटा बच्चा मैंने जाके पोलिबस को दिया था, और पोलिबस आपका फादर है, मतलब उसने आपको अडॉप्ट किया था, और आपका बायोलॉजिकल फादर लुइस है और बायोलॉजिकल मदर जोकास्टा है. जोकास्टा यही है जिससे आपने शादी कर रखी है. उस शेफर्ड ने बताया ऑडिपस को. तो जब ये सारा सिनेरियो क्लियर हुआ ऑडिपस को और जोकास्टा को पता लगा कि वो एक्चुअली तो मदर और सन है, लेकिन अननोइंगली दे मैरिड टू ईच अदर. तो इसीलिए ये सुनकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ. शी रैन अवे टू द रूम, इन हर रूम, एंड शी हैंग्ड हरसेल्फ. तो वहाँ से उसकी सर्वेंट दौड़ती हुई आई रूम से. शी इन्फॉर्म्ड ऑडिपस दैट योर वाइफ एंड योर मदर हैज हैंग्ड हरसेल्फ. तो वहाँ पर जैसे ऑडिपस गया, देन ही start shouting on his servants that give him sword, कि मुझे sword दे दो ताकि मैं खुद को मार दूँ. Nobody gave him sword. Then he went to the body, hanged body. He took out 2 pins from the dress of that body, and then from the dress of Jocasta, और दोनों पिंस उसने अपनी आंखों में डाल दिए in order to make him blind. उसने खुद को blind कर दिया और asked Charon to exile him in the jungle. Is that clear now, Abdullah?
ओके गॉट इट सर। जेवियर सर इन प्लेज में लेसन्स नहीं होते, इतना लेट मी पुट इट ऑफ इन द एंडिंग। जी जी एग्जैक्टली आप इसमें लेसन्स होते हैं। आई हैव टोल्ड यू जस्ट समरी। अभी आप जब हम इनके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हम इसका कि क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअली वो क्या लेसन्स हैं जो कि हमें दिए जा रहे हैं और क्या हमें समझना है। हम इसके एनालिसिस पर क्रिटिकल एनालिसिस इसका करेंगे, हम इसके थीम्स पढ़ेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो then we would come to know that what are the messages given to the readers or the audience through these plays। वो कौन से मैसेजेस हैं जो कि हमें दिए जा रहे हैं। ओके जी भैया, ओके ओके ओके। तो ये बिल्कुल मैसेज होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे प्लेज और इनके अंदर कोई मैसेज ना हो। सो आई होप के दिस इज clear to each and one of you. If anything is remaining or you want to ask anything to the summary or to the whole lecture, please ask me. I am here. I will answer you. I will try my best to answer you and make you understand as simple as possible. जी बेटा क्लियर है सब? Should we end the meeting now? If everything is clear, then tell me in the chat box that I can end the meeting. अगर सब कुछ क्लियर है तो आप मुझे मैसेज में बताएं। तो जवेरिया रईस यस, अब्दुल्ला यस, मुश्ताक यस। बस ये तीन ही लोग रिप्लाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला सेंड लेक्चर 1। जी जी अब्दुल्ला, मैं आज ग्रुप में इंशाल्लाह लेक्चर 1 सेंड कर दूंगा। लेक्चर 1 के भी 2 पार्ट्स हैं क्योंकि 40 मिनट के ऊपर मीटिंग ओवर हो जाती है। ये ट्रेल वर्जन है तो 40 मिनट्स के जो दोनों पार्ट्स हैं फर्स्ट लेक्चर के वो भी मैं सेंड कर दूंगा और आज का जो अभी जो लेक्चर हुआ है इसके भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके बख्तावर सर प्लीज़ सेंड द स्लाइड्स टू। जी बेटा मैं स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगा क्योंकि स्लाइड्स की वजह स्लाइड्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हेल्प आउट करेगी। अगर कोई चीज़ें मिस हुई हैं, कोई समझ में नहीं आई तो आपकी अच्छी खासी हेल्प आउट हो जाएगा वहाँ से आपका। फ़ायज़ा मलिक नो सर आई जॉइन मीटिंग 10 मिनट्स अगो सो आई डिडंट गेट द स्टोरी। हाँ बिल्कुल फ़ायज़ा,